A very pleasant and energetic morning to our resource person, director sir, principal sir and my dear teacher. I welcome you all to today's special workshop. Today we deeply honored to have a highly distinguished personality among us with great pleasure and pride. We extend a hearty welcome to our resource person. Sir, your presence fills our campus with immense pride. दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है. दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है. ठीक उसी प्रकार आप क्या हैं, इसका परिचय आपका काम देता है. The theme of today's special workshop is theory and practice of knowledge. Knowledge is not just a mean to be stored in books, but to be implemented in our lives and teaching methods. Today, Sir will guide us on how we can transform theoretical concept into practical wisdom to make education more impactful. Now, I would like to share some top credits about Sir. Dr. Rakesh Sehgal Sir is a renowned educationist, trainer, motivational speaker and academic mentor with more than 40 years of rich experience in teaching. He holds a PhD in public administration along with degrees in science, English, human rights, mass communication, etc. Dr. Sehgal Sir has been serving as a resource person for the Center of Excellence, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, where he trained thousands of teachers, school leaders, administrations through impactful professional development program. ज्ञान का दीपक जहाँ जलता है, वहाँ अज्ञान का अंधकार मिट जाता है. ज्ञान का दीपक जहाँ जलता है, वहाँ अज्ञान का अंधकार मिट जाता है. आपके जैसे मार्गदर्शक पाकर हर छात्र का भविष्य निखर जाता है. Now I request our resource person, Mr. Rakesh Sehgal Sir, along with our director sir, Navneet Devgan ma'am, Kuldeep ma'am, Anchal Utreja ma'am, kindly come forward on stage for the lighting of lamp. Yes, yes. No need, sir. Good job. Good job. आप Every journey of knowledge is incomplete without seeking blessing from the Almighty and with our gurus. Now I respectfully invite Anish Chanchal sir and Rachandeep ma'am on stage with soulful Guru Vandana.
करता करे न कर सके गुरु के सब होए सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को गुरु गोंगे गुरु बावरे गुरा की रहीदा जे गुर भेजे नरक नो मत स्वर्ग की रखिए आ हाथ है चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दाता उनके साथ है चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दाता उनके साथ है मत करना फूले अगर तुम बन नहीं सकते कांटे बन कर मत चुभना हमको जन्म दिया उस माता को हम क्यों भूले जिसने हमको जन्म दिया इस माता को हम क्यों भूले जिसने हमको पाला है उस पिता के चरणों को छू ले जिसने हमको पाला है उस पिता के चरणों को छू ले Respected Sukhdev sir, Madam Navani Devgan, Ravi sir, Principal, Imperial School, and very lovable participants from this very
prestigious, upcoming institution of this area. ये स्टिलनेस महसूस की आपने? मैं कुछ सेकंड रुका था, महसूस की। फर्स्ट लेसन ऑफ अटेनिंग नॉलेज इज कि जब तक ये स्टिलनेस लाइफ में नहीं आएगी, अभी भी मैं एक नेगेटिव वर्ड यूज करने वाला था, नहीं करूंगा। जब ये स्टिलनेस लाइफ में आएगी तो लाइफ विल स्टार्ट प्रूविंग इटसेल्फ. Then you will not have to chase life. Life will chase, which is very important. So that is the first, what is the knowledge nugget that I give to all of you. बच्चे यहाँ डाइस पे आते हैं तो वहां से उठे फटाफट यहाँ आ गए, वहां से उठे फटाफट आ गए, एंड दे वेरी स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट डिलीवरिंग देयर कंटेंट. जितने भी दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स हुए, जब उनको डायस पे बुलाया जाता है तो सभी की हार्ट बीट बढ़ जाती है. इन द प्रोसेस ऑफ एन एनहांस्ड दैट हार्ट बीट, the mind becomes restless. वो उन इमेजेस को जल्दी से फिल्टर नहीं कर पाता, उन इमेजेस को में कोहेरेंस, कनेक्टिविटी नहीं ला पाता. तो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज कि जब भी स्टेज पे जाओ तो आराम से उठो, आराम से जाओ. और कई जगह बड़ी नोटोरियस क्राउड होती है, बहुत जगह ऐसा होता है कि पीपल डोंट वांट टू लिसन टू मी. तो देयर यू हैव अ चैलेंज. तो आप कुछ नहीं करना, सीधे खड़े होना और सबको एक बार एक नजर से घुमा के देख लेना, सब कुछ से. कई बार नहीं होता कुछ सेकंड्स, बस वहां एक टग ऑफ वॉर होती है थॉट्स की कि आपको पेशेंस लूज नहीं करना. You keep staring the eyes, staring the participants. So, well, my topic is such was theory of knowledge, but I found that this is not the very complete topic to be discussed. So, Adam मैंने किया the theory of knowledge and its practice. मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? Yes. अच्छा लग रहा हूँ? ये क्यों कहा मैंने? बड़ी सिंपल छोटी सी बात है कि कई बार नॉलेज इज जस्ट नोइंग. नॉलेज इज ए फिलॉसफी. नॉलेज इज ए फिलॉसफी, वेरी डीप फिलॉसफी, which gives you the awareness, which gives you the capability to filter the information. To filter the information, unbiased. जो biases हैं जो उसमें निकाल दो, ego निकाल दो, subjectivity निकाल दो. It's not that what you like is knowledge, what you consider is knowledge. You need to filter that knowledge or that information in such a manner that you keep the best with you and reject what is not good. So that is the philosophy of knowledge. That is knowledge. आप रील देखते हो सारा दिन, तो क्या वो नॉलेज है? No. Some of it is knowledge, some of it is not knowledge. Now it is for you to decide what is knowledge and what is not. What is information? इतनी बात आपको क्लियर है? नॉलेज का पता लग गया? थ्योरी ऑफ नॉलेज का क्या पता लगा? थ्योरी ऑफ नॉलेज इज की I'll tell you so many things. That's the theory. That's the theory. आप जब when you move into the society, when you move into this jungle, then somewhere then there are challenges.
Then you come to know that Dr. Sagar told us that this is how we need to face the challenges and fight them out. And you do that. That is practice. Mere knowledge is not enough. But implementation of the knowledge, using that knowledge while facing challenges of life, that is what exactly we call the theory and practice of knowledge. One is theory and other is practice. That makes the whole. मैं तो उस सबको दोनों को ही नॉलेज मानूंगा, लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग कर रहे हैं. तो जितनी छोटी बात होगी, जितनी उसमें ऑनेस्टी होगी, ट्रूथफुलनेस होगी, जितनी डिवाइड ऑफ ईगो होगी, जिसमें ईगो भी ना हो, तो by doing all this, by showing this very small gesture, you pass a test of belongingness with your ideas. अब बड़ी बात बच्चे कह देते हैं, so where does the knowledge comes? No. किसी भी सेंटेंस में कोई भी रूल दो बार अप्लाई नहीं होगा. मेरी बात समझिए. And in any legal process, what you say, no two punishments can be given for one what we say mistake. ठीक है? So now you tell me from where the knowledge comes. क्या sources of knowledge के? One word. Yes. Interaction among people. Interaction among people gives us knowledge. What else? Books. Books give us knowledge. The best knowledge comes from books. Yes. Experiences, sir. Yes. Experiences. Experience gives us. Communication gives us knowledge. Yes. What else? Yes. देख के सुन के सर टचिंग से With senses. सेंसेस हो. 5 senses. Sense of sight, hearing, touch. हाँ जी. और बोलिए. What else? जब हम किसी सिचुएशन से खुद गुजरते हैं. That is what we call experiential learning. Yes. हाँ जी. Patiently listening to everyone. Yes, listening is very important. Listening से आगे चले थोड़ा सा. क्या? Listening से आगे कौन स्टेज है? खुद की थॉट की बेट करना. अब हम ना रुक गए. हम पहले हियरिंग से शुरू हुए, लिसनिंग में रुक गए. लिसनिंग से आगे क्या है? अपनी रियल लाइफ से जो हम जी रहे हैं उससे भी सीखते हैं, सोसाइटी से सर्वाइव कर रहे हैं. समझ लगी थी आपको? अब नॉलेज का क्या करना? जिक्र. अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात बता दो कि नॉलेज निम्न स्तर पे पहले जो इंफॉर्मेशन आ जाती है, दैट बिकम नॉलेज. ठीक है? और नॉलेज की बात जब हम इसको ग्रेडर डालेंगे, काठी डालेंगे, वो काठी ग्रेडर किस चीज की है? वैल्यूज की. वो किसकी है? वैल्यूज की, गुडनेस की, सिंपैथी की, एम्पैथी की, लव की, रिस्पेक्ट की, करेज की, ब्रेवरी की, ऑनेस्टी की, कमिटमेंट की, ड्यूटी बाउंड, हैप्पीनेस की. ये सारी चीजें जब हम ऐड कर देंगे तो थोड़ा हमारे मुताबिक चलेगा. दैट विल बिकम एजुकेशन. और वो एजुकेशन इज रियल नॉलेज. द नॉलेज इज नॉट एजुकेशन बट एजुकेशन इज नॉलेज. इतना क्लियर हुआ? व्हाट इज द अदर लेवल ऑफ एजुकेशन? मेटा एजुकेशन नहीं, और वर्केबल. हाँ जी. नहीं, और यस. व्हाट इज अदर लेवल ऑफ नॉलेज की बात कर रहा हूं. यस. हाँ जी. तो मैं हिंट दे दूं आपको. हिंट दे दो. पहला लेटर है पी. हाँ जी. नहीं, हिंदी में प, उसके पैर में र. हाँ जी. नो. प्रेम. नो. PRA. No. This is the way of
adding spice to your classroom teaching. कभी कभी no. तो कभी कभी when you're teaching the classroom तो कुछ seconds के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया क्योंकि बच्चे 8 मिनट से ज्यादा कुछ सुन नहीं सकते बच्चे सिर्फ 8 नहीं you should value all those things मैं पता है क्या करता हूँ अगर मुझे 10 दिन पहले कोई न्यूट्रिशन आता है ना तो 10 डेज में बस कुछ नहीं सोचता अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता यही सोचता हूँ कि हाउ बेस्ट आई कैन रीच आउट टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल मैं सुनने वालों को निकल के कैसे पहुंच I don't want to go poor from this place. I want to go rich from this place. And at the same time, I have a very honest feeling that once you leave this place, you should go the richest. मैं rich down to आप richest down. Rich with knowledge, rich with information, rich with the best one can dream of. And triangle को लिखा है. ये सारी नॉलेज की बात है. ये एक्सपीरियंस की बात है. एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात है. ये लो. हाँ जी. नहीं ट्रायंगल का मतलब है जब भी दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और उन्हें तीसरा भी आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है. Am I right or wrong? Yes, sir. घर में भी बाहर भी two best people when the third comes जितना मर्जी अच्छा हो गड़बड़ हो जाती है. Am I right? Yes, sir. मैन वुमेन रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है. मैन मैन रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है. वुमेन वुमेन रिलेशनशिप भी माना जाता है. तो इंटरपर्सनल जितने भी रिलेशंस हैं वहां वंस द ट्रायंगल इज मेड तो गड़बड़ होनी है. ठीक लगा आपको? तो नॉलेज की बात बता रहा हूं. जिंदगी में कभी ट्रायंगल नहीं बनते रहना. जहां ट्रायंगल बनने लगे कॉन्शियस हो जाओ, केयरफुल हो जाओ, विजिलेंट हो जाओ, अवेयर हो जाओ, स्टक हो जाओ. ठीक लगी बात? कितनी अच्छी लगी बात? ऐसे मैंने कभी किसी किताब में पढ़ी मैंने भी देखी. ऑनेस्ट नहीं देखी. लेकिन तो जब किसी की अन्याय हटाया सब The best knowledge is जो तुझे खुद हटाया है but you wrong that's the best knowledge. तो इसलिए आप सबको सजेस्ट करूंगा कभी कभी घर से निकल जाओ और आपको कौन सिखाएंगे अच्छा सबसे बढ़िया कौन सिखाएगा? Who will give you the best education? हाँ जी स्मार्ट तो अकेलापन जब हम खुद Yes. के अंदर को Yes, explore yes, करें. yes. Good. तालियां बजाते अच्छी बात. और कौन देगा? Best knowledge and information. हाँ अच्छी बात है. टॉपिक का किसी की वेरी गुड. हाँ जी और Nature, sir. हाँ जी ऑब्जर्वेशन अच्छी बात. बुरे लोग आपको ज्यादा अच्छा सिखाएंगे अच्छे लोगों से. नानक देव जी की हाँ जी कोई नानक देव जी की लाइन मतलब हाँ कहते बसते लोग थे उन्होंने उजड़ जाओ बसते रहो. दैट्स इट. तो डोंट लेट देयर बी एनी ट्रायंगल इन योर लाइफ. टाइम हो गया. विचारधारा से व्यक्तित्व बनेगा और व्यक्तित्व से क्या बनेगा? व्यक्ति बनेगा. तो जिंदगी में the most knowledgeable message that I can deliver to all of you is that always have a strong thought. कहते life is in its own place. Life is in its own place and make a hell of heaven of hell. जब आप बैठते हो जिंदगी के बारे में सोचते हो तो वो जो सोच आपकी थॉट है वो हेल का हेवन बना देता है. वो हेवन का always nourish very strong thoughts. Always nourish the best thoughts. और दूसरा ये कि be sensitive towards the issues of the people around you. Be sensitive towards the environment around you.
मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आई एम वेरी सेफ, मुझे पता है आप एक घर जाने में इतनी बड़ी एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है, थक भी गए हो, इतनी हमें इतना लंबा टाइम बैठने की भी आदत नहीं होती है। और भी कई चीजें होती है लाइफ में, लाइफ इज नॉट जस्ट वन थिंग। कुछ मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ आप ज्यादा समझ पा रहे हो, बिकॉज यू आर लिविंग योर लाइफ। अब आप जब क्लास 4 में होते हो, जब आप मैनेजमेंट के साथ होते हो, जब आप अपनी फ्रेटर्निटी के साथ होते हो, तो वहां आपका सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब उठ के चले जाना है, कब आके बैठ जाना है, ठीक है। और यही चीजें होती है जो लाइफ को हैबत में बनाती है। और ये पूरी कायनात जो ये भी बड़ी सजग है, बड़ी सेंसिटिव है। आप घर में जितने गमले इकट्ठे रखे हुए हैं, एक गमला हटा दो तो सूख जाएगा, क्योंकि वो भी सेंसिटिव है। दिए जलाते हवा तेज आती है, तो क्या लोग करते हैं, 2 दिए की लोग इकट्ठे कर देते हैं, वो बुझता नहीं है। इस बात में बहुत गहराई है कि बहुत बड़े बड़े लोग भी अकेले टूट जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन जो 2 लाइक माइंडेड लोग जो आपसे करते हैं, तो तब मैजिक होता है, जादू होता है, ताकत बनता है। प्लांट्स बोलते हैं, जो लिस्टिंग की बात हुई थी ना, सेंसस की बात हुई थी, प्लांट्स रिस्पॉन्ड बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। जब जंगल में हाथी आ जाता है ना, वो पेड़ के जब पत्ते खाने शुरू कर देते हैं, तो that tree sends vibes to all other trees that yes, there is some challenge, some danger, be conscious. तो आप हैरान हो जो ये बात सुनते कि पत्तों में टेस्ट बदल जाता है, ताकि if the animal comes, we should not be able to relish the taste of the leaves. और पेड़ बातें करते हैं आपस में, बर्ड्स बातें करते हैं, और अगर आप एक पेड़ से फ्रेंडशिप कर लो, और वो बड़े बेनेवलेंसी बहुत होती है पेड़ों में, मेक इट फ्रेंड, गले लगा के बोलो भैया परेशानी है, आप तो सब में चूस देगा, और जब परेशान होके मांगोगे कुछ, तो पेड़ आपको दे देगा, इंसान अगर आप गरीब रहते हुए इंसान भी देगा, पेड़ भी देगा, तो पेड़ जल्दी देगा तो इंसान रात में देगा। थोड़ा कट शॉट कदम जिंदगी में हम कई बार बहुत बड़ा होता है जो हमारे पास आना चाहता है, हम छोटे लड़के होते हैं, हम छोटे लड़के होते हैं। ये सऊदी अरब की बात है जी, वहां गोल्फ खेलते थे, एक बहुत बड़ा गोल्फ का प्लेयर था जिसने एक बहुत बड़ी टीम को जितवा दिया वहां। तो वहां का राजा है उसके पास, तो कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, ध्यान से सुनेंगे। तो वो कहता हाउ अबाउट ए क्लब, he said okay no problem। राजा चला गया, उसका नाम मुझे भूल गया जो प्लेयर था, he also went back home। तो 6, 7, 8 महीने बीत गए, कोई मैसेज नहीं आया, किधर कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो मैंने कहा जी क्लब, तो कोई जवाब ही नहीं, भूल गया राजा। क्लब पता क्या होता है, ये स्टिक होती है गोल्फ में। 6, 7, 8 महीने बाद लेटर, एक मैसेज आया उसको कि आपने राजा को क्लब के लिए कहा था, तो 100 एकड़ का क्लब बना दिया। उसको भी क्लब कहते हैं, जो खेलने के मैदान होता है ना गोल्फ, उसको भी क्लब कहते हैं। मेरी बात सुनिए,
कि दैट्स वेरी, ही वाज शॉक्ड। उसके दिमाग में तो शायद वो स्टिक थी जिससे गॉल्फ खेलते हैं, उसे क्लब कहते हैं, एंड ही वेंट दैट क्लब। तो मैसेज ये है कि हम बड़ी छोटी सी मांग पर अटक जाते हैं, वेट नहीं कर पाते, हम ना रेस्टलेस हो जाते हैं। लेकिन if you keep patience for some time, then the bigger things that are awaiting us, they come to us. और उसमें इतनी कंडीशन भी है। You need to have that honesty. You need to have that excellence. You need to have that bravery. And you need to have that skill, innovation, creativity, everything. And at the end of the day, I would say कि you need to prove yourself. जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे, अब प्रूव करने में एक मुश्किल आती है कि आप कहें मैंने तो अपने आप को प्रूव कर लिया। You say 100 times कि I have proved myself. You have not. But when the other person says yes, you have proved it. So that is what exactly the proving means. तो ये नॉलेज की बात है। तो दो चीजें सामने आती है। ये टॉम है जो मिस्टर विलिस 1523-26 की बात है। शेक्सपियर से पहले जब 5 लोग इकट्ठे हुए, थॉमस किड, थॉमस डी, क्रिस्टोफर मार्लो, Thomas Green, they were 4-5 young people. They were in their 90s, 20s. फैसला किया जैसे कि गुस्सा आते हैं क्या सिस्टम बना, हम लोग we write our own literature and we give a new direction to literary works. तो डॉक्टर फॉल्सर देखा बड़ा पॉपुलर हुआ। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक ओल्ड मैन है, एक डेविल है। मेफिस्टोफेलिस डेविल है। कोई गलत काम करेंगे मन करेगा, ओल्ड मैन कहेगा तो स्टॉप, डेविल क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ते हैं। तो बस यही फैसला हो जाता है। You want to follow the old man or the devil? Devil smart and intelligent है, बातें बहुत अच्छी करता है, वो टेम्प्ट कर लेते हैं। तो जिंदगी में जब भी फैसला करना हो तो बी बाय द साइड ऑफ द ओल्ड मैन। और दूसरी बात, बच्चे हो तो जिंदगी में आपकी लाइफ में कोई ओल्ड मैन होना चाहिए, बिकॉज ओल्ड पीपल दे टीच यू बाय देयर एक्सपीरियंसेस, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बट द डेविल इज टेम्पटिंग, वो टेम्प्ट करेगा, वो गलत आपसे करेगा। अगर आप बड़े हो तो बच्चों के साथ रहो, बच्चे आपको जीना सिखाएंगे। ये एक्सपीरियंस की बात, समय लगे जी। अब थके उसमें असली अब थकावट हुई आपको। अब मैं ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਦਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਜਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੋਲ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਿਛੜੇ ਆਣ ਮਿਲਾਣ ਘੜੀਆਂ। ਜਿਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪੇੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ। एक्चुअली मेरे को कोई ज़्यादा शब्द है नहीं गे अज बोलने, क्योंकि मैं ज़्यादा सर का थैंक्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि सर अपने बच्चों की तरह सानू सब आशीर्वाद देते रहते हैं। पर जेकर मैं गल करा डॉक्टर सहगल सर की, मैं बड़े लोगों को मिलता रहा थ्रू आउट लाइफ, बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट भी मिला, बट जो इन्हों के कोल बैठते हैं तो एक अपनेपन का एहसास होता है। तो मैं चाहूँगा कि सर इस स्कूल की SMC के मैंबर भी बन और कंटिन्यूसली सानू गाइड करते रहें, क्योंकि अजे जिस मुकाम पे आप सब ने पहुँचना आप उत्थे पहुँचे नहीं अजे, तो कहते हैं कि अजे आप शुरुआत ही की है उस रास्ते। वो मुकाम की हैगा, मैं बड़ी बार मीटिंग्स से भी कहा कि उस मुकाम ते आप अपने आप को पहुँचा कदों मनांगे या अपने आप को कामयाब कदों मनांगे, जदों इस इंस्टीट्यूशन तो पढ़ के निकलिया हर एक बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाऊगा या किसी ना किसी मुकाम पे पहुँच जाऊगा और वो अपन याद रखूगा। सब तो बड़ी गल है, तो मैं उस दिन अपने आप को कामयाब मनूंगा। ये इन्नी जल्दी ये मन लेना कि आप कामयाब हो गए या आप बहुत चंगा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी हो गई। सहगल सर इतना ऐसा का थॉट मैं कितने सुनिया, चलो मैं थोड़े नाल भी शेयर कर देना। एक जियोग्राफी के टीचर तो बच्चे ने पूछा कि झरना कितना बनता, तो टीचर ने बड़ा ब्यूटीफुली उनका आंसर दिता कि जो नदी चलती है तो चलते चलते जो उसके नीचों जमीन खत्म हो जाती है तो झरना बनता। और मैं ये थॉट सुनने तो बाद बड़ा इंप्रेस भी होया और अगे इस थॉट्स तो सीखा कि या अगे सुनिया कि जदों भी कोई नदी गिरती है, जदों भी चलते चलते नदी के नीचों जमीन खत्म हो जाती है तो उस तो बाद वो झरने का रूप धारण कर लेते। और सिमिलरली मैनू लगता कि लाइफ भी इंसान की स्ट्रगल हर एक इंसान की लाइफ च हुंदा, किसी इंसान की लाइफ च थोड़ा जिहा छोटा हुंदा, किसी की बड़ा हुंदा, वो डिपेंड करता कि आप रास्ते किदां दे चलदे। और जदों नदी के नीचे जमीन खत्म हो जाती है तो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता, तो वो लखा करोड़ा छोटिया छोटिया बूंदा डिवाइड हो जाता
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ, ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਝਰਨੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂੰਦਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਦੀ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬੂੰਦਾਂ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਝਰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ दूसरा रास्ता की है हार्ड वर्क। देखो बींगा मैं भी ऐसा ही, मेरे को दो ऑप्शन सी कि मैं चुपचाप अपना मास्टर कैडर ज्वाइन करता और एक कंफर्टेबल वधिया SIR च ड्यूटी लगी होनी सी, आराम नाल काम करते महीने का लाख सवा लाख आ जा करना सी और इंजॉय करते लाइफ। एक वो फेज सी, एक ये फेज है। पर मैनू लगता कि इस फेज से जिन्ना स्ट्रगल सी उहदे च तां उन्ना हैगा ही नहीं सी। जीरो स्ट्रगल सी, अजे तक ब्याह भी नहीं होया सी और MSc करते नाल ही जॉब लग गई और मजे सी, तैयारी भी नहीं करनी पई। तो करिया उन्हां दे अंदर ही एहसास असीं पैदा करन च कामयाब होए हैं।